ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 135 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਚਸਿਆਂ ਦਾ, ਪਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪद्धति ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਵੇ, ਡੰਗਰ ਕਵੇ, ਮੂਰਖ ਕਵੇ, ਬੇਅਕਲ ਕਵੇ, ਬੇਸਮਝ ਕਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੇ, ਸੰਤੋ, ਸਾਧੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਰਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਬਈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦਬ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
कि जिहड़ी पाठ कथा कीर्तन गुरु दे घर दी मर्यादा है कि ये कोई वाधू समाचार ने जां असी हुंदा है ना कई बारी भी नहीं मैं तो जी मैट्रिक कर ली है जी, मैं तो ग्रैजुएशन कर ली है जी, मैं तो हुण हायर एजुकेशन विच अगे चला गया जी। सानू गुरु दे घर विच आके सुनना चाहिए और जे असी सुनदे, क्योंकि रब ने मूँह एक दिता है कन दो दिते ने, बोलन नालों डबल सुनना चाहिए और सुनना ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वेखना नहीं है, सुनना है। जानकारी का जिहड़ा पहला स्रोत है वो कन ने। जपजी साहब पढ़ के वेख लो, पहला पौड़ियां सुने दियां आउंदियां ने। छोटा जिहा बच्चा जन्म लैण तो बाद सब कुछ वेख रहा है पर उसनूं कुछ भी पता नहीं है। सुन सुन के पता लगे भी इनू माँ कहना है, इनू पिता कहना है, इनू घर कहना है। जिहड़ी मैं चीज़ वेख रहा, ये सोफा है, ये कुर्सी है, इनू चमचा कहीदा है, ये कौली है, वेख के नहीं पता लग्या, सुन के पता लगे। वेख के गल पकड़ विच नहीं आई, सुन के आई है। हुण असी सच्चे पातशाह दे दर ते आउणे आ, उमरां बीत गईयां पर यह प्रभाव साडे विचों मुक्या नहीं भी अज संगरांद है। इसे करके लड़ीवार शब्द जिहड़ी बाणी है, शब्द है, उसनूं हर महीने बाद रोकिया जाता है। महीने वाला शब्द पढ़िया जाता है। हुण सब नूं इन्ना ही पता है भी अज भादों का महीना चढ़िया है। भादों किनू कहंदे ने? कि भादों जिहड़ा है वो सिर्फ अज 12 घंटे 24 घंटे 16 18 घंटे ही है, नहीं अगले 30-31 दिन है। जो अज उपदेश सानू प्राप्त होना है कि ये उपदेश 1 2 4 5 10 दिन वास्ते 2-4 घंटिया वास्ते है, नहीं भाई, ये पूरे महीने वास्ते है। ये गल गुरु साहबाना नूं भी पता सी। यही कारण सी सारियां तो वड्डे सतगुरु ने जिन्हां दी अपनी हजाती 70 साल है। अज असी सोचते भी शायद कोई 2-4-5 सालों की सरकार कोई करामात वरता देगी, नहीं, इहदा संसार नहीं बदलता। सत्तर साल हजाती रही सब तो वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब जी दी, और उन्होंने अपने नाल ही ये जिहड़ी शरीरक गुरु वाली प्रणाली सी इनू खत्म नहीं किया, विराम नहीं दिता, इनू अगे चलाया, अगे ही नहीं चलाया। जदों ये गल आखी है कि लैणे आ असी तां लभ रहे सां, कोई अपना मिल जाए असी उहदे विच टिक जाइए,
और इस गल की गवाही भाई गुरदास जी ने भी भरी है। सानू सिर्फ इदां लगदा है कि बाबा गुरु नानक वेले सन, चले गए दुनिया की यात्रा ते, नहीं, उहदे विच एक इशारा सानू मिलिया सी कि गुरमुख खोजत भै उदासी। मल्टी फंक्शन सन उस यात्रा दे, बड़े सारे कारण सन उस भरमण दे। उहदे विच एक कारण यह भी सी किसी गुरमुख की तलाश। और वो जदों गुरमुख मिल गया, केवल उस भाई लहणे नूं गुरु अंगद बना के गद्दी नहीं दिती, उन्होंने मत्था भी टेकिया, उहदी परिक्रमा भी की। आख्या लहणिया मैं तेरे तो सदके जावां, मेरी तैनू नमस्कार है कि तू मैनू अपने विच बैठण दी थां दिती है। बैठण दी थां दा अर्थ ये नहीं भी कोई मकान बनाया तो उहदे च कमरा तुहाडा पा दिता, उहदे च तुहाडा बैड ला दिता भी लो जी तुसीं इत्थे रह लो जी, ते बाबा जी खुश हो गए। भाई लहणे ने अपने हिरदे रूपी घर नूं इतना पवित्र किया, इतना शुद्ध किया, इन्नी अपने हिरदे विच सुचमता लैके आंदी कि बाबे नानक नूं पसंद आ गई। कहण लगे मैं तो इत्थे ही रहना है। उन्हां नूं अपने घर विच नहीं, अपने हिरदे विच वो सेज बना के दिती, वो बिस्तर विछा के दिता, उदां दी उचमता सुचमता पैदा करके दिती कि जन्म साखी दे करते ने कहा कि बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के हिए माहे, ना दुनिया दे लोको बाबे नूं बाहर लभण जाएओ, वो गुरु अंगद दे हिरदे विच बैठा जे। इस प्रणाली नूं अगे तोरिया। किन्ने साल? 239 साल। पता सी सतगुरां नूं ये इंसान इन्नी छेती बदलण वाला, सुधरन वाला, समझण वाला ये है नहीं। यही कारण सी कि इस गुरु प्रणाली नूं अगे चलाया। फिर बाणी नूं महानता दिती। जेड़े जेड़े बचन गुरु साहबाना ने उचारण किए उन्हां नूं संभालिया। उन्हां नूं अपने कोल गुरु बाणी दे रूप विच संग्रह किया, इकत्र किया। और जिवें जिवें बाणी आउंदी गई उवें उवें उहदी महानता, उहदी वडियाई भी प्रगट होंदी गई। जे पोथियां आईयां ते बाबे मोहन दे चबारे विच रखियां। बाबे मोहन जी का एक पक्ष असी सुनते हैं भी वो तो जी बड़े रुखे सी जी। किसी ने तो नहीं कहा भी वो भगती नहीं सी करते, उन्हों का मिलन वर्तन घट सी, वो बहुता उपरामता विच रहिंदे सी। पर कदे थोड़ा सुने भी वो तो जी बुराइयां करते सी, वो तो एवें ही घूमते फिरते सी, वो तो चंगे काम नहीं सी करते। गुरु अमरदास जी दे वड्डे साहिबजादे दी जदों आपां कथा सुनते हैं तो बाबा मोहन जी नूं बाबे पिरथी चंद नाल नहीं जोड़िया जा सकता।
बाबे पिरथी चंद जी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ने अवग्या ਜਿਹੜੀਆਂ ने उन्हां दियां गलतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो एक वखरा पक्ष है। बाबे मोहन जी की बड़ी महिमा है। शायद गुरबाणी दी वडियाई दे अनुसार कि एक खजाना कित्थे संभालिया जाए, ये बाबे मोहन दा चौबारा ही जिहड़ा सी ना वो एक सुरक्षित सेफ जगह सी, जिथे ना कोई जा सकता सी, ना ही उन्हां पोथियां दे विच कोई मिलावट कर सकता सी। फिर जदों हरमंदर साहब दा अस्थान तैयार हो गया, फिर ये बाणी दा खजाना एक ग्रंथ दा रूप धारण करदा है और उस हरमंदर दे विच इहदा प्रकाश हुंदा है। वो बाणी अज गुरु दे घर विच पढ़ी जाती है, विचारी जाती है। चाहिदा तो यही सीगा कि इस बाणी नूं सुणदियां, पढ़दियां, गाउंदियां, विचारदियां साडे विच कोई परिवर्तन आउंदा जां सानूं इस गल दी समझ आउंदी कि ये जिहड़े दिन हुंदे ने, महीने हुंदे ने, ये केवल एक कैलेंडर हुंदा है। कैलेंडर तो वध इहदी कोई महानता नहीं है। अज आपां भादों कह दईए, भादों ना कहो। जे तुहानूं महीने दे प्रति कोई वहम भरम होवे तां अगस्त कह दिओ। 16 तरीक कल सी, कल पारसियां दा नवां साल शुरू होया। व्यापारियां दा जिहड़ा नवां साल है वो 1 अप्रैल तो शुरू हुंदा है। जिहड़े सनातनी ने उन्हां दा 1 चेत्र तो शुरू हुंदा है। जिहड़े असीं नानकशाही वाले हैं साडा भी 1 चेत्र तो शुरू हुंदा है। जिहड़े इंग्लिश कैलेंडर वाले ने उन्हां दा 1 जनवरी तो शुरू हुंदा है। बड़े दुनिया च कैलेंडर ने, ये कैलेंडर ने। कैलेंडरां दा अर्थ जिहड़ा हुंदा है ये समय दा माप तोल है, ये दिनां दी जमा घटाओ है। पर असी इत्थे इवें ही है जिवें बंदा वस्तु नूं छड्ड के भांडा फड़ लवे। ये माइयां तो सीखण दी लोड़ है। उही घिओ वाला भांडा जदों खाली होवे तो माइयां ने बाहर धुप्पे विहड़े च रखिया हुंदा है, पर उसे भांडे विच जदों घिओ पै जाए तो पुछो भी बेबे हुण इहनूं बाहर रखना है विहड़े च? कहना ना पुत इहनूं अंदर रखो। वस्तु की कीमत है, वस्तु दे नाल भांडे की भी कीमत है, पर बिना वस्तु तो भांडे की कोई कीमत नहीं है। बिना वस्तु तो बर्तन की कोई कीमत नहीं है। अज भी सच्चे पातशाह किरपा करते ने। भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा खेत। ये गुरु पिता जी का एक ढंग है, वो है प्रथाए साखी। वो जदों भी बचन करते ने कोई ना कोई प्रमाण दे के, कोई उदाहरण दे के, कोई दृष्टांत दे के, किसी अलंकारी ढंग दे नाल वो साडी अगवानी करते हैं। भादोए महीने का ना है। हुण ये महीना बरसात का महीना है, पहला नहीं दूजा है, पहला सावन है। हुण इहदे विच
तराकटे भी आउंदे ने, कुंबे भी आउंदे ने, हुमस भी आउंदा है। हुण मैं तां खेतीबाड़ी नाल संबंधित परिवार दा बच्चा हाँ। साडे तां बड़ा सौखा जिहा एक शब्द बोलिया जांदा सी, कहंदे पुत्तर ये जिहड़े भादों दे तमाचे हुंदे ने ना, चमासे हुंदे ने, घुम्मे हुंदे ने, हुमस हुंदे ने, इन्हां तो डरदे तां जट जिमीदार लोग साध हो जांदे ने। इहदे च कई वारी इदां दा वक्त भी आउंदा है भी मींह पै जांदा है ते मींह हट जांदा है, हवा रुक जाती है। जदों धरती फिर अपनी तपश छड्डदी है, वो वक्त इदां दा वक्त हुंदा है कि बंदे नूं खुद ही लगदा भी मेरा किते हार्ट ही ना फेल हो जाए, साह ही नहीं आउंदा, पसीना पानी वांगू चलदा है। हर घड़ी दा मत्थे ते उंगल मारीए ना तो पूरी धार पानी दी निकल आउंदी। फिर इस वैदर नूं, मौसम नूं, इदां दा जिहड़ा वातावरण है, हुण सतगुरु उहनूं मुख रख के कहंदे ने कि भादों जिहड़ा ये भरम दा महीना है। इहदे च कोई पता नहीं हुंदा भी तुसीं बाहर कपड़े सुकने पा के जाओगे, आउंदियां नूं सुके होणगे जां डबल गिले होणगे, कदों मगरों कोई बदल दी टुकड़ी आवे ते सारा कुछ जल थल करके चली जाए, ये भी कोई पता नहीं। इहदा सावण च नहीं मन्निया जाता, भादरों च हुंदा है। ये भी मन्निया जाता है भी ये तां वट दे नाल वट मींह छड़ जाता है। एक किले विच मींह पै रहा हुंदा है, दूजे किले च बंदा खलो के वेख रहा हुंदा है भी वो मींह पै रहा है। कई बार जिमींदार लोगों का रोण भी निकल जाता भी उधर पैना मेरे अल भी आ जा, क्योंकि खेती वो भी सुकरी हुंदी है। सच्चे पातशाह ने इत्थे भादों शब्द महीने का नाम है, भरम पैदा होने वाले भुलेखियां का नाम है। इनू साखी बना के सच्चे पातशाह महाराज कहते ने भुलाणियां बंदिया तेरे जीवन दे विच भुलाणियां पैदा हो सकदियां ने, ये चेता रखी। बड़ा सुचेत रवी जदों भादरों का महीना आवे, भादरों दे भरम तेरे विच भुलेखे पैदा कर सकते ने, और वो भुलेखे तैनू किते दे किते लैके जा सकते हैं। दूजे लगा हेत तेरा प्यार मूल नालों टुट के, सच नालों टुट के किसी होर नाल भी बन सकता है। तेरी लगन किसी होर नाल हो सकती है। हुण सतगुरु की बाणी नूं पढ़ो। हुण जदों इहदी व्याख्या विच जाओगे तो माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, ही परमात्मा भरम दे बारे की कहना चाहिए, किहो जिहा है। देखो सानू कुछ शब्द आउंदे ने पर उन्हां दा जिहड़ा मूल अर्थ है वो नहीं आउंदा, उहदा भाव नहीं पता सन, जां उहदे विच जिहड़ी सेंस हुंदी है सानू उहदे बारे कोई नॉलेज नहीं हुंदी। भादरों दे भरम विच पिया मनुख भुल जाएगा, उहदा प्यार किसी होर नाल जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होएगा? इस करके माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, ते अगों जवाब मिलिया जैसा मानीए होए ना तैसा। भरम का इको ही दोष है। हुण ये तुहाडी जिंदगी का बड़ा नेड़े का शब्द है,
क्यों बई तू ये गल कीती मेरे बारे? कहंदा नहीं नहीं मैनू पता लगे। असी फिर की कहने हैं? नहीं वीर जी ये सिर्फ तुहाडे मन का भरम है। भरम का अर्थ ही है कि जिथे हकीकत नहीं है। रस्सी नू सप समझना ये भरम है, सप नू सप समझना भरम नहीं है। बस इन्ना ही ये भेद है। रात दे अंधेरे विच एक पई हुई रस्सी नू सप समझ लेना ये भरम है। पर जे वो रस्सी नहीं सप है तो फिर भरम नहीं है, फिर तो सच है। भरम का अर्थ ही ये है कि गल है कोई नहीं पर साडे मन ने बना ली, साडे अंदर वो गल जिहड़ी घर कर गई। अच्छा फिर बजुर्ग की कहते ने? कहते पुत्र हर बीमारी का इलाज है, भरम का इलाज कोई नहीं है। इस वहम का कोई इलाज नहीं है, इसकी दवाई नहीं बनी कोई अजे तक। जदों असी भरम में चले जाइए, भुलेखे में चले जाइए और ये मत सोचना कि किसी प्रति है। कई बारी ये भरम बंदे नूं अपने प्रति भी हो जाता है भी मेरे जिन्ना सियाणा कौन है, मेरे जिन्ना अमीर कौन है, मेरे जिन्नी अकल किनू है। एक हुंदा है भरम दूजियां दे प्रति, नहीं कईयां नूं अपने प्रति भी भरम है। आप ही भुलेखे च तुरे फिरदे ने भी आ सारी दुनिया मेरे मगर है, ये भी एक भरम है। आ सारा झाम दाम मेरे करके है, ये भी एक भरम है भी पता नहीं मेरे करके संसार तुरया जाता है ना। इस संसार विच तू एक है, तेरे वर्गे इत्थे कई ने। भादरों का महीना आया, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उपदेश दिता भरम विच ना पवी, भुल ना जावी। ये ना होवे कि तेरा प्रेम प्यार किसी दूजे नाल जुड़ जाए। दूजा कौन है जी? दूजे का अर्थ है कोई होर, जिहदे नाल तेरा प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उहदे तो मूल तो टुट जाना। तो जिहड़ा बंदा मूल तो ही टुट गया, इनू कहते हैं मुढ़ों कुत्था जाए। मुढ़ तो ही स्टार्टिंग ही गलत हो गई, शुरुआत ही गलत है। जदों थोड़ी लेजर बुक दे विच, तुहाडे हिसाब किताब दे विच, तुहाडे घर दे किसे चलन वाले बिजली पानी इन्हां सिस्टमां दे विच किते फॉल्ट आउंदा है तो कहंदे वो फिर सियाणे अगों कहंदे जी वेखना पेगा। तो फिर पता लगदा नहीं जी ये तो मूल तो ही सी, तुहाडे घर बिजली चली गई। फिर जाके पता लगा भी मगर तो MC डिगी हुई सी, मुढ़ों ही। हुण जदों MC डिग पई तो सप्लाई बंद हो गई पूरे घर की। हुण एवें घर के बटन थां थां करके ट्यूबां ला ला के बल्ब चेंज कर करके उहदे नाल की होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। जे मगरों ही फ्यूज उड़ गया तां की करोगे? जे मगरों ही तारां गलत जुड़ गई तो फिर तो गल ही गई आई। सब तो वड्डी गल यह है कि तुहानूं पता होना चाहिए कि जिहड़ा धर्म है ये वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी जीने का एक सफल रस्ता है। इस सफल जीवन का, सुखी जीवन का एक ढंग है, एक खजाना है। असी तो मुढ़ों ही भुले हुए हैं। कोई व्यक्ति दस दे कि मैं धर्म नूं इस करके अपनाया है कि मैनूं तो हुण पता लगा।
कि जी जिंदगी सफल भी हो जाती है तो सुखी भी हो जाती है। धर्म दे विच आके मंगण दी लोड़ कुछ नहीं है, फिर मंगण दी लोड़ नहीं है। तुसी धर्म दे रस्ते ते तुरो तो फिर की होएगा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर, जो हर हिरदय सदा वसाए। मैनू ये गल बड़ी सौखी जी इदा समझ आई है कि अमृतसर साहब के रस्ते ते तुर पवो, पानीपत आप ही आ जाएगा, करनाल भी आ जाएगा, अंबाला भी आ जाएगा, लुधियाना भी आ जाएगा, जलंधर भी आ जाएगा। ये चीज़ां तुहाडी जिंदगी विच अपने आप आउणियां ने, रिधियां सिद्धियां निधियां। तैंडे सिमरन हब किश लदम, वो पाठ शुरू तो करो। ज्ञानी जी केड़ा पाठ करिए, पुछो भी अगे केड़ा कीता है? अगे कीता है कोई? अगे भी नहीं कीता। किहड़े गुरुद्वारे जाना चाहिए, पुछो पहला किहड़े गुरुद्वारे दी तुसी तुर तुर के सड़क नीवी कीती है? तुरे ते 4 दिन नहीं किसी गुरुद्वारे नूं आपां बह जाइए तो घड़ी नहीं वेखी जाइए बाबा कदों चुप करूगा। पता नहीं बाबे की कथा ही नहीं मुकती, पता नहीं संगत आई जाती तां बाबा बोली जाता। सानू नहीं पता। धर्म प्रेम का सबजैक्ट है, प्रेम गिनतियां मिनतियां का सबजैक्ट नहीं है। वेखो लेखे जोखे दे विच विहार हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। 24 घंटे तुसी किसी बंदे नाल कापी पेन लैके वरतोगे तो तुसी चंगे व्यापारी अखवाओगे, पर जदों प्यार की गल आएगी उत्थे ये चीज़ां तुहानूं छड्डणियां पैणगियां। प्यार विच विहार नहीं हुंदा, ते जे विहार विच प्यार ले आओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आशिक ना आखी है जे लेखे वरते सोए, इन्ने पाठ कर ले जी, इन्ने दिन मैनू गुरुद्वारे हो गया जी, इन्ना टाइम मैनू बैठिया हो गया जी। चंगा आशिक है बई तू। आ हुणे कीर्तन सुने, आशिक ये ना आखी है, इदां दे आशिक हुंदे ने जे लेखे वरते सोए। जदों तुसी प्यार दे विच किते होटल ते बह के भी रोटी खाने हो, हालांकि मैं इनू गलती समझदा, जदों बिल आवे ना कोई नहीं पढ़दा कि बिल ठीक है। ये अज तो ध्यान भी रखियो जे, आप बिल देण लई लड़ना शुरू कर देने। नहीं नहीं भाजी मैनू दिओ ना, वो कहता जी मैनू दिओ, भावें बोतलां पानी दियां 3 दी थां 5 लिखियां होण, रोटियां 2 दी थां भावें गुआंढी दे टेबल दियां भी लिखियां होण, दाल सब्जी भावें जिहड़ी नहीं खाधी उहदा भी बिल उहदे विच होवे। ये अज तो बाद कदे ग्रोसरी भी लैके आओ ना घर, ते उहदी समान दी चैकिंग जरूर करिया करो। किलो की थां 2-2 किलो के बिल पाए होंदे ने। ये अमरीका की भी धरती है, मैं तो उत्थों ये गल पकड़ी है ना। पर अज की जिहड़ी विचार उहदे विच मेरी सिर्फ इन्नी बेनती है कि जदों तुसी प्यार विच रोटी खाण लई बैठे तो बिल देण लई लड़े हो, रोटियां गिणियां नहीं कि तू 2 खादियां मैं 1 खाधी है, तू अपना बिल दे मैं अपना बिल दिया, नहीं। इनू ही प्यार कहते हैं। प्यार विच लेखा जोखा नहीं हो सकता। प्यार दे विच हिसाब किताब है ही नहीं है। जे भादों दे महीने का उपदेश सुनना है, हुण पता नहीं आप इदा कथा सुनना आए भी हैं कि नहीं आए। बहुती बारी तो आप ही आने हैं भी बाबा जी 2 सेब दे देन, 2 केले दे देन, साढ़े घर 2 पोतरे हो जान, या बाबा जी दस देन भी कित्थे खंभ लाईदा, किहड़े बाबा जी खंभ लाउंदे ने।
फंबा दे दिओ जी, फंबा प्रशाद भी है, जिवें साडा फुल प्रशाद है, फुल दे दिओ, पागे च टुंग लिया, बस ठीक है, वाकी टाकी शुरू हो गई रब नाल। भावनावां तक ये गल्लां बहुत अच्छियां ने, पर धर्म इत्थे खत्म नहीं हुंदा। सच्चे पातशाह महाराज समझाउंदे ने कि लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, लखां कीते धर्म दे कर्म, लखां धारण कीते धार्मिक चिन्ह बिल्कुल व्यर्थ हो गए जे तुहाडा मुढ़ों प्यार ही किते होर चला गया। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके उचीत, सिख साखा बहुते किए, केसो कियो ना मीत। यार दोस्त बड़े बना ले, यात्रा ते तुरे, ट्रक भर लिया पिंड दे लोकां दा, पर चले ते सी तुसी गुरु कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन, हजूर साहब चले सी मिलन, भी गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे उड़ीकदे ने भाई अपने सिख नूं। पर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो ना मीत। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके उचीत। सारा जोर प्रबंध ते ही लग गया भी उत्थे अगे सरां दा प्रबंध करना है, उत्थे कंबलों का प्रबंध करना है, उत्थे नाश्ते का प्रबंध करना है, उत्थे लंच का प्रबंध करना है, तो थोड़ी थोड़ी घूमी घूमी भी करनी है। तो घरों तुरे सी यात्रा ते भी रब दे घर चले असीं। वो गल ते सारी राह च रह गई। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, जित दिन दे बिनस सी तित वेले कहसन प्रेत। बंदिया जिस दिन तेरा शरीर मिट्टी होएगा तेनू प्रेत कहणगे लोग, गुजर गया है, अपवित्र है। पकड़ चलाएन दूत जम किसे ना देनी भेत। जमदूत लै जाणगे कि मगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होएगी, कोई इंटीमेशन नहीं है। आ जिहड़ियां गल्लां कीतियां जांदियां ने वो गल्लां साडे लई बेफजूल ने। उहदा कारण है भी सानू आदत ही नहीं। हुण वेखो ना, एक बंदा दुनिया तो चला गया, पता ही नहीं कित्थे गया, ते घर दे एक थाली कौली चमचा चप्पल छतरी रजाई तलाई चादरां वो पूरा समान बनी फिरते ने। पुछो घलना कित्थे है? पता लगा है भी अपना बजुर्ग गया कित्थे है। हुण इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है भी असीं वाकई गवार हाँ। थिती वार सेवैं मुगद गवार, डंगर पशु आसी। पता है कोई नहीं बापू कित्थे गया है, पर फिर थाली कौली चमचा चप्पल रजाई तलाई इन्ना समान इकट्ठा किया मगर भेजण लई भी पता है कित्थे गया। कि तुहानूं उत्थों दा जिप कोड पता है? जिथे कोरीयर घलना है, जिथे डाकखाने समान घलना है, वो सप्लाई कौन लैके जाएगा? कोई पता नहीं, फिर भी चली जाता है। तो जे कह दो भी भाई ये चीज़ां नहीं ठीक, ज्ञानी जी हाँ जी सानू पता है जी, ये गुरुद्वारे काम आ जाणगियां, तो गुरुद्वारे मरियां दियां ही आउणियां चाहीदियां ने काम। जिहड़ा विआह च दाज आया सी उदों ही 4 भांडे कढ दिंदे खां, नाले माल ते मालकां दा सी, मशहूरी कंपनी दी हो जाती। तुहाडा विआह होया, तुहाडा दाज आया, उदों ही एक शनील दा बिस्तरा कढ दिंदे, उदों ही 2-4 5 भांडे भी कढ दिंदे भी भाई मरण तो बाद भी चाहिए ने, कल्ले विआह तो बाद थोड़ा चाहिए ने। मतलब मरिया दियां चीज़ां गुरुद्वारे इकट्ठियां कर दो कि यही सिख धर्म है। इत्थों ही पता लगता भी नहीं असीं सियाणे नहीं है। जमदूत लै गए ने, पता किसी नूं नहीं है। जवानी भरम विच लंघ गई, धर्म दे धार्मिक चिन्ह पाउंदियां जीवन बतीत हो गया। मौत आई, लोकां ने प्रेत कह दिता। जमदूत आए,
आत्मा नूं लैके चले गए। छड्ड खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। ते जिहड़े अपने सी वो तो छड्ड गए। तुहानूं पता है लोग मड़ियां तो बाहर आके हत्थ मूँह क्यों धोंदे ने? वो इन्ना भी तुहानूं बर्दाश्त नहीं करते भी तुहानूं मरे नूं वेख के इदां ही मूँह लैके घर चले जाना। वो कहते मूँह भी धो लो। ये जिहड़े को हत्थ लाए ने माड़ा मोटा तीला सुट्टन लगे हत्थ भी धो लो। इदां भी हुंदी है। आपां वाकिया तो नहीं भरम दे विच पए होए, एवें सारी दुनिया अपनी बना के तुरे फिरदे आ। ये तो मेरे ने जी, ये तो मेरे अपने ने जी। सतगुरु कहते नहीं, तेरा कोई नहीं है। यही लोग तैनू प्रेत कहणगे, यही लोग तैनू छड्ड के खड़े हो जाणगे। छड्ड खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां नाल तेरा प्यार लगा है ये छड्ड देणगे। हथ मरोड़े तन कपे स्याहों होआ सेत। हथ पैर मरोड़े जाणगे। जिंद नमानी कढ़िए हड्डां कू कड़काए। रंग काले तो चिट्टा हो जाएगा। जिहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये कर्मा रूपी खेती है, जो तू बीजे है हुण तैनू वड्ढना पेगा। मगर दी कोई सप्लाई नहीं है। ये इस भुलेखे च ना पैना कि मगरों की माल आएगा, मगरों की चीज़ घली जा सकती है ना। ये तो आपे बीज आपे ही खा। नानक अगे सो मिले जे खट्टै घालै दे। जिहड़ा अज कमाओगे, जिहड़ा अज दान पुण्य करोगे, ये तुहानूं अगे मिल जाएगा। पर तुम सोचो भी मगरों बच्चे कोई चीज़ भेजणगे तुसीं लै लोगे, नहीं, वो सिस्टम है नहीं। सिख धर्म ने इसनूं प्रवान नहीं किया। इस करके नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। जेड़े प्रभु की शरण विच आउंदे ने उन्हां नूं गुरु किरपा करदा है। अपने चरणां दे जहाज विच बिठाउंदा है। से भादोए नरक ना पाईए गुर रखण वाला हेत। वो व्यक्ति भादों दे महीने जे समझ नाल धर्म कमाउण उन्होंने कदे नरकां च नहीं जाना पवेगा। उन्होंने गुरु का प्यार रख लवेगा। चाहते असी सारे ही हाँ, कहते असी सारे ही हाँ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले। वो इत्थे भी रखेगा, वो उत्थे भी रखेगा। दोवें थाम रखे गुरसूरे। सूरमा गुरु तुहाडा लोक भी रख लेगा, पर लोक भी रख लेगा। पर गुरु दे प्यार विच अपने जीवन नूं असी बतीत करिए। भरम दे भुलेखिਆਂ दे विच पै के मूलों परमात्मा तो गुरु तो असी टुट ना जाइए, खुंज ना जाइए। इन्ने शब्द प्रवान करना। सतगुरु किरपा करन, उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।